Hello. Today we will discuss the poem Childhood written by Marcus Nathan of Hornville Book for the class +1. Childhood. In this poem, the poet laments the loss of his childhood. मतलब कभी अपने बचपन के खो जाने पर अपना दुख वो शो करता है. एंड इट वॉज अ टाइम व्हेन ही बिलीव्ड दैट देर इज़ अ हेवन एंड अ हेल. अब वो सोचता था कि हेवन है, हेल है, स्वर्ग और नरक दोनों होते हैं. इट वॉज अ टाइम व्हेन ही बिलीव्ड दैट द अडल्ट्स रियली मीन्ट व्हाट दे सेड. मतलब यह वो समय था जब वो ऐसा मानता था कि जो अडल्ट लोग होते हैं जो भी वो कहते हैं वो सच होते हैं, मतलब सच बोलते हैं. एंड ही आल्सो बिलीव दैट पीपल रियली लव्ड वन अनदर. सचमुच में लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं. व्हेन दे टॉक्ड एंड प्रीच्ड ऑफ लव, जब वे प्यार की बातें करते हैं और उपदेश देते हैं. इट वॉज अ टाइम व्हेन ही थॉट हिमसेल्फ एज वन अमंग अदर्स and he didn't think he was in any way different, but now all the innocence is gone. So let's start. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all the same to me? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Written by Marcus Nathan. So now we will explain it deeply. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? In this line, the poet realizes that he has lost his childhood. उसको लगता है कि उसका childhood खो चुका है. But he doesn't know when and where he had lost it. कहाँ उसने इसको खोया है. He asked if he had lost it the day when he entered his 12th year. तो जब वो 11 ईयर का पूरा हो गया और 12th ईयर में लग गया, क्या उस दिन उसने खो दिया था? और it could be the time, या फिर ये वो समय था when the poet realized that heaven and hell were no real places. जब उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि जो hell और heaven है, स्वर्ग और नरक, वो वास्तविक नहीं है. They could not be found anywhere in books on geography. वो geography की किसी बुक्स में कहीं भी उनको नहीं पाया जा सकता था. And they were just product of imagination. वो क्या थे? हमारी imagination का product थे. Therefore they couldn't be found anywhere on this earth or anywhere in any books. So the poet wonders what day could be when he lost his childhood. कौन सा वो दिन था जब उसने वो अपना बचपन खो दिया था. Next, second extract is, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all the same to me? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? In this line, the poet says that he doesn't know when he lost his childhood. Perhaps it could be the time when he realized the adults were not what they seemed to be. जब उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि अडल्ट जो कुछ वो बोलते हैं वास्तव में वो ऐसे नहीं होते हैं. अडल्ट्स टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, एंड इन हिज चाइल्डहुड द पोएट यूज्ड टू थिंक दैट द अडल्ट्स वर रियली लविंग एंड केयरिंग. जो अडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वयस्क जो लोग होते हैं, वो वास्तव में लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं. बट नाउ व्हेन he has lost his childhood, now he finds that in their action they are not so loving. अपने एक्शन में वो इतने लविंग नहीं होते हैं. they seemed loving only in their talking and only in their preaching. मतलब people talked of love and preached, but they
नॉट एक्ट लविंगली। बातें करते हैं, उपदेश देते हैं दूसरों को उपदेश देते हैं प्यार से रहने का, प्यार से काम करना, प्यार की बातें करना, बट इन देयर एक्चुअल एक्शन, लेकिन उनका जो एक्चुअल बिहेवियर होता है, दे वर मच डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। द पोएट सेज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फाउंड दिस हाइपोक्रेसी इन द एक्शन ऑफ पीपल, अडल्ट पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब वयस्क जो लोग हो जाते हैं, अडल्टहुड में क्रॉस कर जाते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, मतलब प्यार के सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन एक्शन उनके प्यार के नहीं होते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? My mind was really mine, मतलब मेरा मन सचमुच मेरा ही था। I feel in this line the poet says that he doesn't know when he lost his childhood, वो नहीं जानता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कब खोया है, कहाँ खोया है। एंड सो ही सेज दैट परहैप्स इट कुड बी द टाइम, शायद यह वो समय होगा, व्हेन ही फेल्ट हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जब वो अपने आप को दूसरों से थोड़ा डिफर फील करता है। ही रियलाइज्ड हिज माइंड वॉज रियली हिज ओन माइंड, and in other words we can say that he realized that his mind or his thought differently from others. He had an independent mind, बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंड है उसका, स्वतंत्र माइंड है। एंड ही कैन यूज इट एनी वे ही लाइक, जैसा भी वो चाहे वैसे वो अपने माइंड को यूज कर सकता है। हिज थाट्स वर नॉट द थाट्स ऑफ अदर पीपल, अब उसके जो थाट्स हैं वो दूसरे लोगों की नहीं है। दे वर हिज ओन पर्सनल थाट्स, वो इसकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत थाट्स हैं। एंड अ सेंस ऑफ ईगो हैड डिवेल्प इन हिम, एक ईगो, अब ईगो उसके माइंड में थोड़े धीरे धीरे डिवेल्प कर रही है। एंड ही नो longer thought himself as one among others, he thought himself to be a unique person. Okay, where last extract, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. This extract, hidden means छिपा हुआ, इन्फेंट्स फेस किसी बच्चे का, जो शिशु जिसको हम बोलते हैं, शिशु का चेहरा, नन्हे बच्चे का चेहरा। सो इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट ही डज नॉट नो वेयर हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन, अब वो नहीं जानता कि उसका बचपन कहाँ गया है, लेकिन वो फिर इमेजिन करता है। नाउ ही सेज दैट इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगटन प्लेस, उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया है, इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस, it has gone to some forgotten place, it could be hidden in some infant's face, ये कहाँ पर छिपा होगा, it could be hidden in an infant's face or some infant's face, मतलब जो एक शिशु होता है, बिल्कुल नन्हा सा बच्चा होता है, वो किसी एक ऐसे शिशु, किसी ऐसे छोटे से बच्चे के चेहरे में ये छिपा हो सकता था उसका बचपन, उसका चाइल्डहुड। That is the only thing the poet can say about his childhood, and childhood remains only as long as one is an infant, according to the poet. Poet के according क्या है, मतलब childhood कब तक रह सकता है, it remains only as long as one is an infant, जब तक कोई व्यक्ति अपनी शिशु अवस्था में रहता है, इन्फेंट में वो रहता है, इन्फेंट होता है शिशु, बिल्कुल नन्हा सा जो बच्चा होता है, बालक, तो उसकी अवस्था में जब तक रहता है तब तक चाइल्डहुड रहता है। एज वन ग्रोज इन ईयर्स, जैसे जैसे आयु में बड़ा होता जाता है, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड स्टार्ट्स डिसअपियरिंग फ्रॉम हिम और हर, तो वैसे वैसे उसके जो बचपन है, मासूमियत जो है, इनोसेंस है उसके बचपन की, वो ख़त्म होती जाती है, मतलब गायब होने लगती है धीरे धीरे। ओके, सो इन दिस पोइम द पोइट गिव्स हिज व्यूज अबाउट द चाइल्डहुड, बचपन के बारे में पोइट बताता है, बचपन क्या है, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हाइपोक्रेसी,
और जैसे स्टैंजा फर्स्ट है उसमें टॉक ऑफ रैशनलिज्म, सेकंड में हाइपोक्रेसी के बारे में बताया हुआ है, और थर्ड में उसने इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया हुआ है। वैसे ही लास्ट एक्सट्रैक्ट में उसने डिटेल में बताया कि एक्चुअल में चाइल्डहुड कहाँ होता है, एक इन्फेंट्स के फेस में होता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे गायब होता जाता है जैसे जैसे एक पर्सन बड़ा होता जाता है। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू would have understood it and try to recite it at home. Thank you for watching.